This is my IDC, jetking.com. First ping. Reply from IPv6. Check out your IP addresses. In this scenario, I used 122 network IDs. This is my IP address, this is subnet mask, and this is DNS addresses. Create user, start administrator tools, Active Directory and user. आप इसको रन करने के लिए एक डायरेक्ट कमांड चला सकते हो, dsa.msc. करेक्ट. Click on domain name, new, and organization unit, OU. Okay, right click and create some user like that. U1, enter the password, 2-time password. बनानी where password U1 right. Copy this user. U2 again, copy. Copy. कितने यूजर बनाए हमने? एक ऑर्गेनाइजेशन यूनिट बनाई और एक हम चाहते हैं कि ये यूज़र जब डोमेन पे लॉगिन करेगी तो इनकी प्रोफाइल कहाँ मिल जाए, हमें हमारे पास अवेलेबल हो जाए. तो हम पहले तो हम एक नई ड्राइव बनाते हैं. इसमें इसको श्रिंक करके बन गया. हमारे पास सी ड्राइव नहीं, इसके अंदर मैं कुछ फोल्डर बना देता हूँ. शेयर फोल्डर किसके नाम से बनाऊँ? जैसे यूज़र्स हैं उन्हीं के नाम से बनाते हैं. U1, U2, U3, U4. शेयर कर दें इनको. यूजर के नाम से बनाया फाइल. हमने शेयर फोल्डर भी उन्हीं के यूज़र्स के नाम से ही बना दिया. ताकि हम चाहते हैं कि उनकी प्रोफाइल कहाँ पे आ जाए, यहाँ पे स्टोर हो जाए. हाँ, इनके पास नहीं है. डन. प्रोफाइल सेट करें. dsa.msc. क्लिक ऑन यूज़र प्रॉपर्टीज़,
profile path where exists /122.0.0.1/u1 u2 u3 U1. यही है हमारा पाथ। या तो आप इस पाथ को यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दो, या तो आप क्या करो मैनुअली लिख दो। या तो आप क्या करो मैनुअली लिख दो। तो जैसा आपको अच्छा लगे वैसा आप करो। u1 किस यूज़र के लिए, राइट, अप्लाई कर दो। कितने यूज़र को दूँ, एक यूज़र के लिए दे दिया मैंने, काफ़ी है। दूसरे यूज़र के लिए हम क्या करेंगे, मैंडेटरी प्रोफाइल बनाएंगे। गो टू द मेंबर ऑफ डोमेन। तो पहले तो मेंबर ऑफ डोमेन पे चलते हैं, और मेंबर ऑफ डोमेन का नाम है client1। और उसका यूज़र नेम है एडमिनिस्ट्रेटर। जस्ट वेट है। This is my client, and check IP addresses 122.0.0.2 and IP addresses, DNS addresses 122.0.0.1. And this computer name is, check computer name. Client1. And how to join domain? Right click on my computer, properties, change setting, change, and click on domain or give the domain name jetking.com. okay, give the username, credential. Welcome to jetking.com domain. Okay, restart. Go to the another client, second client, client 2, right, administrator. But first add this. Check IP address first. 122.0.0.3 and 1. Ping your domain and join this computer on domain. Right click on my computer, properties, change setting, change, and enter the domain name. Enter the credential. सर ये क्लाइंट जो बनाया है किस Okay, close. Restart now. Minimize this one. Go to the client 1 and log in your user 1. Log in the user 1. Client 1. Restart हुआ ये client 1. Go to the client 1. What is the problem? What the? Go to the client 1 and log in the user U1. U1 user. Connect. Enter the password of user.
Just wait. डोमेन के मेंबर सबको नहीं आना है। This is my client 1 PC and this is user 1 login. Who is user login? And change the profile just like profile picture, like a profile picture, and create some folder in desktop like one user 1 on client 1 machine. मतलब user 1 ने ये folder कहाँ बनाया? client 1 machine पे. Go to the client 2, log off this user. Log off this user. Go to the another PC, client 2, and log in the user, same user, u1@zking.com. Right? Your profile. Your profile access from server, right? Check out your profile access from server. U2 U1 on client 2. यानी ये हमने कहाँ बनाया? client 2 पे बना. client 2 पे जाके ये प्रोफाइल हमें कहाँ से एक्सेस हो रही है रेगुलरली. अब इसने भी यहाँ से क्या किया? पर्सनल जाके डेस्कटॉप बैकग्राउंड चेंज कर दिया. सपोज करो हमने कर दिया अभी लॉग ऑफ दिस यूज़र ऑन क्लाइंट 2 से. मैं क्या कर रहा हूँ? क्लाइंट 2 मशीन से मैं इस यूज़र्स को क्या कर रहा हूँ? लॉग ऑफ कर रहा हूँ. अब हम क्लाइंट 1 पे यही यूज़र लॉगिन करेंगे तो हमें प्रोफाइल क्या मिलनी चाहिए? जो अभी हमने लॉग ऑफ करते वक्त दिया. चेक कर लो. क्लाइंट 1 पे जाऊँ, कनेक्ट कर लो जेटकिंग 1 को, यूज़र 1 को, और लॉगिन कर लो. तो तुम्हें तुम्हारी प्रोफाइल कहाँ से एक्सेस हो रही है? फाइल सर्वर से. कहाँ स्टोर है तुम्हारी प्रोफाइल? फाइल सर्वर में. राइट? मिल गई तुम्हारी प्रोफाइल. ये था रोमिंग प्रोफाइल. अब आपको मैंडेटरी प्रोफाइल करनी है. मैंडेटरी प्रोफाइल किस पे अप्लाई करते हैं? आपकी जो प्रोफाइल थी वो एक्चुअली सेव कहाँ पर हुई? हमारे जहाँ पर फाइल सर्वर कहाँ बना रखा था हमने? यहाँ पर बनाया था ना पाथ. आ गया ये सिक्योरिटी कह रहा है कि सिक्योरिटी है इस फोल्डर पे. राइट? तो इसे ओपन नहीं करना. तो हम मैंडेटरी प्रोफाइल यूज़र 2 को देते हैं. तो यूज़र 2 को गो टू यूज़र 2 प्रॉपर्टीज़ प्रोफाइल सेम 122.0.0.1/user2 नहीं शेयर फोल्डर नेम u2 और यूज़र नेम u2. अप्लाई. ओके. Go to the client 1 या client 2 anyone user. Log off first this u1. And log in user 2. Which user? User 2@jetking.com. User 2 access and change the profile. Change our profile first time and after log off. Administrator set mandatory profile. एडमिनिस्ट्रेटर क्या करेगा? सेट करेगा मैंडेटरी प्रोफाइल में. पर्सनलाइज लाइक हम क्या करते हैं? दिस इज यूज़र 2. ओके. डेस्कटॉप बैकग्राउंड चेंज और मल्टीपल फोल्डर क्रिएट. u2 ऑन क्लाइंट 1. मतलब हमने कहा कि ये u2 ने कहाँ पर बनाए? u2 वाले यूज़र ने, और इसको मल्टी बार पेस्ट कर दिया यहाँ पे. राइट? यूज़र ने क्या किया? लॉग ऑफ किया. यूज़र ने क्या किया? लॉग ऑफ किया. बट हम चाहते हैं, हम क्या हैं? एडमिनिस्ट्रेटर हैं. हम चाहते हैं कि यूज़र क्या करे?
मैंडेटरी प्रोफाइल रखे, यानी नेक्स्ट टाइम वो लॉगिन होगा और अपनी प्रोफाइल चेंज नहीं कर पाएगा कभी भी नहीं, राइट। तो हम क्या करेंगे, jetking.com मतलब जहाँ पर आपकी प्रोफाइल है, जहाँ की आपकी क्या है प्रोफाइल है, तो प्रोफाइल कहाँ है हमारे अभी राइट टाइम ई में, यूज़र 2 में। और सबसे पहले इस फोल्डर को क्या कर दो, ओनरशिप दे दो, क्योंकि ये फोल्डर किसने बनाया है, रिप्लेस ओनरशिप किसको, एडमिनिस्ट्रेटर को। ओके यस ओके, ओपन दिस फोल्डर एंड प्रेस alt key, click on tools, folder, view, show and hide, uncheck and check mark, okay, apply, okay, and rename the anti-user.dat man, change again, change the ownership, change the ownership, who is owner, user 2 is owner ना, क्योंकि बिकॉज यूज़र 2 ने क्या किया, ओके ओके ओके, अब कौन हो गया ओनर, पहले यूज़र 2 था, हमने एडमिनिस्ट्रेटर किया बिकॉज हमें एंटी यूज़र डॉट डैट को मैन में कन्वर्ट करना था। फिर से हमने क्या किया, जो एडमिनिस्ट्रेटर हमने ओनरशिप बनाया था उसे क्या किया, फिर से जिसकी एक्चुअल फाइल थी उसे ही हमने क्या दिया, उसे ओनरशिप बना दिया, राइट। अब यूज़र 2 किसी भी पीसी पे लॉगिन होता है, क्लाइंट पीसी पे, जस्ट लाइक अभी हम जाते हैं क्लाइंट 2 पे, कहाँ पे चलते हैं, क्लाइंट 2 पे, और क्लाइंट 2 पे क्या एक्सेस करते हैं, यूज़र 2 को jetking.com पासवर्ड, तो उसे अपनी प्रोफाइल तो मिल जाएगी, उसे अपनी प्रोफाइल तो एक्सेस हो जाएगी, बट वो चेंज नहीं कर पाएगा। हम चेंज करके देखेंगे, अगेन यूज़र 2 को कहाँ पर लॉगिन करेंगे, क्लाइंट 1 पे, तो हमारी प्रोफाइल चेंज नहीं मिलनी चाहिए। इफ़ चेंज मतलब यू आर रॉन्ग सम स्टेप, चेंज मिलेगी तो, अभी तो एक्सेस ही नहीं हुआ, अभी तो प्रोफाइल क्या नहीं हुई, एक्सेस ही नहीं हुई, मीन्स हमारी कोई ना कोई प्रॉब्लम्स है। यहाँ पर मैसेज आया था एक, तो हम दिस मेथड इज़ रॉन्ग वे, आपको अब कौन सा मेथड करना है, दूसरा, दिस इज़ माई jetking डोमेन एंड आई हैव फोल्डर, शेयर फोल्डर U3 and U4, also U1, and set the profile for user 3, like properties, profile, where saved 1 U3/user 3 के लिए दे दिया हमने, कि यूज़र 4 कर दो, 3 रहने दो ना, ठीक है। फिर क्लाइंट 2 पे लॉगिन करो, किसे, पहले तो जो यूज़र लॉगिन है उसे क्या कर दो, लॉग ऑफ कर दो क्लाइंट 2 पे। इस बार हम क्लाइंट 2 पे क्या करेंगे, यूज़र एक्सेस करेंगे, किसको, U3 को ना, तो U3 को करो U3@jetking.com, and change the profile. Just change the profile like desktop, and which icon this is, okay, right, and create the folder U3 on client 2, हम कह रहे हैं कि ये क्लाइंट 2 पे मशीन बनाया है, कंट्रोल V पेस्ट, लॉग ऑफ दिस यूज़र, तो पहले इसे लॉग ऑफ मत करो, इसे ऐसे ही रहने दो, ठीक है। कहाँ जाओ, DC पे, जहाँ हमारी प्रोफाइल आ गई हुई है, हमारी प्रोफाइल आ जानी चाहिए किसमें, U3 में आ गई, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको जो DC है उस पे पहले जो यूज़र्स है ना, जिस यूज़र को आपने प्रोफाइल बना, मैंडेटरी प्रोफाइल देना चाहते हो, उसे मेंबर ऑफ बना दो, किसी भी मेंबर ऑफ
प्रिंट ऑपरेटर का। किसका? एडवांस में जाके फाइंड आउट प्रिंट ऑपरेटर का बना दो। आ रहा प्रिंट ऑपरेटर? प्रिंट ऑपरेटर का क्या बना दो? मेंबर बना दो। ओके, बिकॉज प्रिंट ऑपरेटर का मेंबर इसलिए बनाया ताकि ये यूज़र लॉगिन हो जाए इसी सिस्टम पे, इसी डोमेन पे। तो हमें इससे क्या कर देते हैं हम? लॉग ऑफ कर दूँ, लॉक कर दूँ? लॉग ऑफ ही कर दूँ, तुम्हारी इच्छा। अब हमने जेटकिंग डोमेन के पे क्या ओपन करना है? कौन सा यूज़र लॉगिन करना है? U3, राइट ना? U3@jetking.com। चलो कोई नहीं, @ लिखने की ज़रूरत नहीं है। कनेक्ट और U3 का पासवर्ड एंटर करो। बट allow, this is some problem. Terminal server remotely. How is possible कि मैं इसे remotely access? Login this user है। User 3 login on this PC. Where? Domain. User 3 को किस पे लॉगिन किया? डोमेन पे लॉगिन किया। डोमेन पे ही इसलिए हमने उसे प्रिंट ऑपरेटर का मेंबर बनाया ताकि वो कहाँ पर लॉगिन कर जाए? वैसे इजीली लॉगिन नहीं करता है, ये तो सिर्फ तुम कर रहे हो। यदि किसी और यूज़र्स के पास ऑथेंटिकेशन नहीं है। U3 फर्स्ट चेंज द प्रोफाइल, ऐड द राइट्स, प्रॉपर्टीज, सिक्योरिटी, एडिट, ऐड विच एडमिनिस्ट्रेटर। एडमिनिस्ट्रेटर को क्या करना है? हमें पूरे राइट्स देने हैं। तो पहले फाइंड आउट कर लो, वहाँ से मिलेगा नहीं। एडमिनिस्ट्रेटर को क्या कर रहा हूँ मैं? फुल राइट्स दे रहा हूँ। ओके हो जाना। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर को क्या करें? पूरी की पूरी राइट्स दे दें ताकि वो क्या कर सके? चेंज कर सके ना इसकी प्रोफाइल को। यदि हम डायरेक्ट ओनरशिप चेंज कर देंगे, देखो ओनरशिप चेंज कर देंगे, हु इज ओनर? दिस U3 ओनर। अब हम ओनरशिप चेंज कर देंगे तो उसकी प्रोफाइल एक्सेस नहीं होगी। पिछली बार मैंने ऐसे ही करवा के दे रहा था फिर, लेकिन बट ओनरशिप चेंज नहीं हो रही थी। लॉग ऑफ दिस यूज़र and again login on administrator account on this machine on the DC. Which user? Administrator. And connect 123 minus ASD. What is this? कभी ये प्रॉब्लम आ जाती, कभी login on DC. This is administrator and change the anti user dot. रीनेम करो, करे ना रीनेम फाइल्स का। जो डॉट है किस पे? यूज़र 3 पे एक्सेस ना। रीनेम दिस वन man, राइट। आप चाहो तो राइट्स हटा सकते हो, लेकिन राइट्स हटाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिकॉज मैंडेटरी प्रोफाइल, आई एम सेट यूजर मैंडेटरी प्रोफाइल फॉर यूज़र 3। अगेन लॉग इन द यूज़र ऑन क्लाइंट 1। दिस यूज़र इज क्लाइंट 1 ना। यूज़र 3 अभी लॉग इन कहाँ पर है? क्लाइंट 2 पे। लॉग ऑफ करो, लॉग ऑफ। User 3 profile save on and log in the user on user 3 on client 1. Access the profile from file server. User profile services, wait. Apply user setting, wait. Login session, prepare your desktop. योर प्रोफाइल इज एक्सेस ना। प्रोफाइल एक्सेस हो रही है नहीं हो रही है? हो रही। फोल्डर आ रहे हैं। अब यहाँ पर नया फोल्डर बनाओ, यूज़र 3 ऑन क्लाइंट 1। क्या ये फोल्डर आपको अब मिलने चाहिए जब हम क्लाइंट 2 पे लॉगिन करेंगे यूज़र को? तो नहीं मिलने चाहिए ना। यही तो
अब ये क्लाइंट 2 पे नहीं मिलने चाहिए हमें, जो ये फोल्डर हमने यहाँ पर बनाए। क्लाइंट 2 पे लॉगिन करो, कनेक्ट 123 -ASD, नहीं मिलने चाहिए, मिल गए तो पिटेगा तू, बता दिया मैंने। श्योर है नहीं मिला? मिला। और अब हम चाहे वहाँ पर भी लॉगिन करेंगे, वहाँ पर भी नहीं मिलेगी। कहाँ पर? जहाँ पर हमने वो एक्चुअल में क्रिएट किए थे। किस मशीन पे किए थे? तो चलो फिर क्लाइंट 1 पे। अब ये क्लाइंट 1 क्लाइंट 2, तो एक्चुअल कॉन्सेप्ट ये होता है प्रैक्टिकल का, ये नहीं कि क्लाइंट 1 पे करूँ ना। ठीक है, अभी मिल गई तो कौन पिटेगा? मिल गई तो कौन पिटेगा? जितेंद्र? फिरोज। जो फोल्डर हमने यहाँ पर बनाए थे इसके डेस्कटॉप पे, वो भी यहाँ पर भी हमें अवेलेबल नहीं होनी चाहिए। क्यों? बिकॉज योर प्रोफाइल एक्सेस फ्रॉम, मिले डेस्कटॉप में देख ले, नहीं मिला ना, तो प्रोफाइल चेंज हो रही है? नहीं हो रही है, नहीं मिला यहाँ पे। नहीं मिलेगा जी, बिल्कुल नहीं मिलेगा। अब हमने मैंडेटरी कर दी है, राइट ना। चलो ठीक है, नेक्स्ट बताता हूँ मैं तुम्हें होम फोल्डर। तो गो टू द DC, तो DC पे जाऊँ, ठीक है, और DC पे के पास मैं कुछ फोल्डर बना देता हूँ। इनको तो डिलीट कर दूँ डिलीट? कोई प्रॉब्लम तो है किसी को? नहीं है, क्योंकि हमारा वो प्रैक्टिकल तो ख़त्म हो गया। चलो इसको छोड़ देते हैं, न्यू और डिलीट। क्या बना दें? यूज़र 1, यानी यूज़र 1 के लिए हम क्या कर रहे हैं? यूज़र होम फोल्डर बना रहे हैं। एक यूज़र के लिए बहुत है। शेयर दिस फोल्डर, क्लोज, गो टू द यूज़र प्रॉपर्टीज। नो 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 नो, you know, U1 properties, where profile, connect, give the letter name, where exists your share folder 122.0.0.1, share folder name is user1, और किस यूज़र के लिए दे रहे हो? U1 के लिए। अप्लाई, ओके, गो टू द क्लाइंट PC and login, go to the client PC and login user 1, right? हाँ, सब वहीं पे आएंगे। चेकआउट, होम, राइट ना। यदि आपको मेनली आप नॉर्मल इन्वायरमेंट में हैं और आप एक्चुअली में उसे शेयर फोल्डर जो हमारा, मैं दूसरे तरीके से बता देता हूँ आपको कि हमारे कोई DC में एक शेयर फोल्डर है, मैप नेटवर्क ड्राइव। अब हमें ये तो हमारा हो गया शेयर फोल्डर। अब मैंने क्या किया, एक शेयर नाम से बनाया इसके यहाँ पर DC पे, और मैं चाहता हूँ कि ये भी मुझे ये मैनुअली होगा। ठीक है, मैनुअली आपको बनाना पड़ेगा। वो तो हमने डोमेन से सेट कर दिया था, समझ में आया? वो तो हमने पर्टिकुलर यूज़र्स को डोमेन से सेट कर दिया होम फोल्डर। बट मैप नेटवर्क ड्राइव आप पर्टिकुलर सेट नहीं कर सकते हो। आपको क्लाइंट PC पे जाना होगा और बताना पड़ेगा /122.0.0.1 शेयर 1 मुझे क्या चाहिए? एज ए मैप नेटवर्क ड्राइव चाहिए, और उसे किस ड्राइव लेटर में चाहिए? कोई भी ड्राइव लेटर नेम दे दो, फिनिश कर दो। बट एक्सेस इज डिनाई है, ये एक्सेस नहीं कर सकता उसे, तो इसके लिए तो बनेगा नहीं। बना, एक्सेस इज डिनाई बन गया, बट क्या है? डिनाई कर रखा है, बट आप एक्सेस नहीं कर सकते हो। बन गया ना ये शेयर। तो ये था मैप नेटवर्क ड्राइव। इस तरीके से आप मैप नेटवर्क ड्राइव बनाओगे। करके दिखाऊं क्या? तुम तो बोलोगे कि वो एक्सेस ही नहीं हुआ। बड़ी प्रॉब्लम है तुम्हारे साथ तो। अरे क्लाइंट 2 को एक्सेस करो और उस पर लॉगिन करो एडमिनिस्ट्रेटर को। किसको? एडमिनिस्ट्रेटर को, और कनेक्ट करो उसे
मैप नेटवर्क ड्राइव बना रहा हूँ मैं। पहले मैंने क्या बनाया था, $1/1.2.0.0.1 शेयर क्या चाहिए मुझे एज ए मैप नेटवर्क ड्राइव विच एच फिनिश बन गया। चेकआउट ऑन माई कंप्यूटर एंड यू कैन एक्सेस create some folder like some files where store, go to the DC where exists your share folder. All files are available. This is map network drive and home folder. How to enable shadow copy? Shadow copy user accidentally delete your files. How to restore? So first enable like that. I have some one folder SHADOW और मैंने इसके अंदर क्या बनाया, इसको कुछ टेक्स्ट फाइल बनाई चेकआउट के नाम से। हमें क्या करना है, चेकआउट करना है। तो ठीक है, चेकआउट को पेस्ट कर दो मल्टीपल बार और इस शैडो को क्या करो, शेयर करो। राइट, अब क्या करो, शैडो कॉपी इनेबल करो। प्रॉपर्टीज शैडो फर्स्ट क्या इनेबल विच ड्राइव ई ड्राइव में है ना हमारा डेटा भी स्टोर। ओके यस, क्रिएट। अब मैंने शैडो कॉपी तो बना दिया अभी, बट मैंने शैडो कॉपी के बाद क्या किया, उसमें कुछ डेटा और डाला। मतलब आफ्टर शैडो, आफ्टर शैडो के बाद, आफ्टर शैडो मैंने कब डाला, जब शैडो कॉपी पहले बना दी। अब सडनली किसी यूज़र ने क्या किया, इसको एक्सेस किया कहीं से, इस प्रोफाइल को। ये हमारे पास कोई यूज़र्स है, ओके इसे लॉग ऑफ कर दो। गो टू द net.pc ऑन द नेटवर्क, दिस इज नेटवर्क ना, क्लाइंट 2 and access the share folder shadow and some user accidentally delete the files. How to restore? Right click on this, restore previous version। या तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो या तो प्रॉपर्टीज में जाके previous version and restore and okay। आपका डेटा पूरा का पूरा आया, बट जो आफ्टर आप शैडो कॉपी बनाया था आपने जो डेटा, वो रिस्टोर नहीं होगा और वो ज़िंदगी में भी नहीं होगा। नहीं तो आपको क्या उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको फिर दोबारा से क्रिएट करना पड़ेगा। राइट, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।